रीमान स्टिल्जर्स इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 23 आरएस इंटीग्रेबिलिटी ऑफ सम फंक्शन। आप सभी का स्वागत है। थ्योरम नंबर 14, if f1 and f2 belongs to RSG over closed interval AB, then f1 plus f2 belongs to RSG over closed interval AB. Also integral a to b f1 plus f2 dg is equal to integral a to b f1 dg plus integral a to b f2 dg. पहले हम f1 प्लस f2 के बाउंडेडनेस पर विचार किए हैं। f1 और f2 दोनों रीमान स्टिल्जर्स इंटीग्रेबल हैं विथ रिस्पेक्ट टू g ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इट मीन्स दैट दोनों ए बी में बाउंडेड हैं। इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर्स k1 एंड k2 से सच दैट नाउ f1 प्लस f2 ऑफ x का मॉडुलस इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x। फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, यानी कि f1 प्लस f2 इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगेन f1 and f2 belongs to RSG over closed interval AB implies that for every epsilon greater than 0 there exists P1 P2 belonging to PAB such that U P1 F1G minus L P1 F1G less than epsilon by 2 and U P2 F2G minus L P2 F2G less than epsilon by 2 by necessary and sufficient condition for RS integrability. Now we have to use this result. We know that if P dash is any refinement of P, then U P dash Fg minus L P dash Fg less than or equal to U P Fg minus L P Fg. Since P equals to P1 union P2 is common refinement of P1 and P2, therefore ये जो रिजल्ट है P dash की जगह P लिखो और इधर एक बार P1 लिखो, एक बार P2 लिखो, क्योंकि ये रिफाइनमेंट P1 का भी है P2 का भी। तो U P Fg F की जगह एक बार F1 लिख दिया माइनस L P F1 Fg लेस देन और इक्वल टू U P1 F1 G माइनस L P1 F1 G and U P F2G minus L P F2G less than or equal to U P2 F2G minus L P2 F2G. नंबर 2, थ्योरम का प्रूफ चूँकि बड़ा है इसलिए मैं पहले कुछ हिस्सा लिख दिया हूँ, इससे मेरा समय कम से कम 5 मिनट तो बच ही गया। फ्रॉम 1 and 2 जरा देखें, ये डिफरेंस इस डिफरेंस से छोटा है और ये डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। U P1 F1G माइनस L P1 F1G ये है, यानी कि ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड आल्सो दिस डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। मैथमेटिक्स को लिखना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। किसी प्रूफ को इस तरीके से है हम लिख देंगे कि आप उसको पढ़ते जाइएगा, आपके समझ में आता जाएगा, फिर किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रॉम 1 and 2 और लिखना लिखते 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 आता है, जैसे कि बोलना बोलते 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 आता है। फ्रॉम 1 and 2 U P F1G minus L P F1G is less than epsilon by 2 and U P F2G minus L P F2G is less than epsilon by 2. Number 3, adding these we have इसको एक साथ, इसको एक साथ रख लें।
ऐसे लिख दें यू पी एफ वन जी प्लस यू पी एफ टू जी माइनस कॉमन ले लिए एल पी एफ वन जी प्लस एल पी एफ टू जी लेस देन दिस प्लस दिस एप्सिलॉन। नंबर 4, corresponding to partition P equals to curly bracket A equals to x naught, then x1, then so on, comma xn, which is B and belonging to n, of closed interval AB. Let small m dash r, comma capital M dash r be the infimum and supremum of f1 plus f2. Small m double dash r, comma capital M double dash r be the infimum and supremum of f1. Small m triple dash r and capital M triple dash r be the infimum and supremum of f2. सब के सब आई आर में। डन। ये ध्यान से देख लें, उतार लें या तो स्क्रीनशॉट की मदद लें। स्मॉल m dash r less than or equal to f1 plus f2 of x, and this is less than or equal to capital M dash r. For all x belonging to IR. नंबर 5, f1 प्लस f2 का ये इन्फीमम है, ये सुप्रीमम है, सारी फंक्शनल वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। आल्सो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू IR, अब f1 f2 के भी लिख डालें, m डबल डैश r लेस देन और इक्वल टू f1 ऑफ x लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M डबल डैश r एंड m triple dash r less than or equal to f2 of x less than or equal to capital M triple dash r. दोनों को जोड़ दिया जाए, implies that small m double dash r plus small m triple dash r less than or equal to f1 of x plus f2 of x for all x belonging to IR and ठीक समझ रहे ना, ये हिस्सा जोड़ा हमने, राइट हाफ लेंगे तो हो जाएगा f1 ऑफ x प्लस
F2 of x less than or equal to capital M double dash R plus capital M triple dash R for all x belonging to IR. Implies that small m double dash R plus small m triple dash R less than or equal to F1 plus F2 of x for all x belonging to IR and F1 plus F2 of x less than or equal to capital M double dash R plus capital M triple dash R for all x belonging to IR. को बढ़िया से देख लें, समझ में आ रहा है ना। देखो एक बार हमने इतने इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़ा, फिर दोबारा हमने इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़ा, दो रिजल्ट बना लिए, दोनों चल रहा है इत्मीनान से। Implies that small m double dash R plus small m triple dash R is a lower bound of F1 plus F2 in IR. Clear? And capital M double dash R plus capital M triple dash R is an upper bound of F1 plus F2 in IR. देखो ध्यान से, अगर डेफिनेशन आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड का ठीक से समझ में है आता है तो अगर ये लोअर बाउंड है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटा होगा। इम्प्लाइज दैट स्मॉल m डबल डैश R plus small m triple dash R less than or equal to greatest lower bound of F1 plus F2 in IR and अगर ये अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा होगा, यानी लीस्ट अपर बाउंड इससे छोटा होगा। तो या तो ऐसे लिखिए कैपिटल M डबल डैश R प्लस कैपिटल M ट्रिपल डैश R ग्रेटर देन और इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ F1 प्लस F2 इन IR। implies that small m double dash R plus small m triple dash R less than or equal to ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फिमम कहते हैं, इन्फिमम ऑफ F1 plus F2 in IR and capital M double dash R plus capital M triple dash R greater than or equal to least upper bound को सुप्रीमम कहते हैं, सुप्रीमम ऑफ F1 plus F2 in IR implies that small m double dash R plus small m triple dash R less than or equal to F1 plus F2 का IR में इन्फिमम क्या माने थे आप? ये मानने वाला कार्यक्रम चल रहा था ना, तो हम सिंगल डैश वाला माने थे, स्मॉल m डैश R एंड कैपिटल M डबल डैश R प्लस कैपिटल M ट्रिपल डैश R ग्रेटर देन और इक्वल टू सुप्रीमम माने थे इसका हम लोग कैपिटल M डैश R। implies that sigma R varies from 1 to n, small m double dash R into delta GR plus sigma R varies from 1 to n, small m triple dash R into delta GR, ये less than or equal to sigma R varies from 1 to n
small m dash r into delta g r, and sigma r varies from 1 to n, capital M double dash r into delta g r plus sigma r varies from 1 to n, capital M triple dash r into delta g r greater than or equal to sigma r varies from 1 to n, कैपिटल M डैश r इंटू डेल्टा जी आर। ध्यान से देख लो भैया। अब ये लोअर सम और अपर सम आ गए तीन तीन फंक्शन के, f1 प्लस f2 के। आगे बढ़े। इम्प्लाइज दैट, पहचानिए, ये लोअर सम है, ये लोअर सम है, ये लोअर सम है। ये f1 प्लस f2 का है, ये f1 का है, ये f2 का है। तो हो गया L P F1 G प्लस L P F2 G लेस देन और इक्वल टू L P F1 प्लस F2 G। एंड ये सब अपर सम्स हैं। U P F1 G प्लस U P F2 G ग्रेटर देन और इक्वल टू U P F1 प्लस F2 कामा G। इसके नंबरिंग कर दें। नंबर 6, इसके बाद जो L वाला रिजल्ट है उसमें हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और U वाले रिजल्ट में फिर जोड़े उड़ेंगे। देखो कुछ इस तरह से, इम्प्लाइज दैट, पहले हम इसको लिख ले रहे हैं, इसको इधर, इसको उधर। U P F1 प्लस F2 कामा G लेस देन और इक्वल टू U P F1 G प्लस U P F2 G एंड ए माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये चिन्ह बदल गया, ग्रेटर देन हो गया तो उलट दिए, यानी कि माइनस L P F1 प्लस F2 G लेस देन और इक्वल टू माइनस L P F1 G माइनस L P F2 G। अर्थ या लीजिए ध्यान से, इन्हें जोड़ दिया जाए। एडिंग, वी हैव U P F1 प्लस F2 कामा G माइनस L P F1 प्लस F2 कामा G लेस देन और इक्वल टू, अब इधर जगह नहीं है लिखने से क्या फायदा, लिखा जाए, लेस देन और इक्वल टू दिस माइनस दिस, एक साथ लिख लो, U P F1 G माइनस L P F1 G आ तो गया, और प्लस ये दोनों एक साथ लिख लें, U P F2 G माइनस L P F2 G। ये इक्वेशन नंबर 3 में आपने लिखा हुआ है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2,
दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बाई 3 इक्वल्स टू एप्सिलॉन. समराइज करके कंक्लूड करने जा रहे हैं. 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ पार्टीशन P बिलोंगिंग टू PAB सच दैट U P F1 plus F2 G minus L P F1 plus F2 G is less than epsilon, and hence this is necessary and sufficient condition for Riemann-Stieltjes integrability. ये जो फंक्शन है F1 प्लस F2 ये RS इंटीग्रेबल हुआ विथ रिस्पेक्ट टू G ओवर क्लोज्ड इंटरवल AB. इसको हम लिख दें बिलोंग्स टू RSG ओवर क्लोज्ड इंटरवल AB. एक पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट नंबर 6 तक हुआ है ना. 7, 8, सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले चूंकि इतने रिजल्ट्स हम निकाल दिए ना, इसमें निकल गए, उन सबको पहले लिस्ट कर लें, क्योंकि हम आपको पढ़ा भी तो रहे हैं, समझा भी तो रहे हैं, तो हमें दिखेगा तभी तो हम बताएंगे इससे उससे ये हुआ वो हुआ. तो सारे रिजल्ट्स हम यहाँ लिख लेना चाह रहे हैं. बिल्कुल लिख रहा है. उसमें से किसका उपयोग होना है नहीं होना मतलब नहीं है. चलो मैं देख देख के लिख ले रहा हूँ. हालांकि नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल नहीं करना हमको, लेकिन लिख ले रहा हूँ. लेकिन हम क्या रहता है U P1 F1G P1 F1G माइनस L P1 F1G less than epsilon by 2 and U P2 F2G minus L P2 F2G is less than epsilon by 2. ये रिजल्ट नंबर 1 है. टू है U P F1G माइनस L P F1G is less than or equal to U P1 F1G minus L P1 F1G and U P F2G minus L P F2G less than or equal to U P2 F2G minus L P2 F2G. ये था नंबर 2. इसके बाद फिर है U P F1G minus L P F1G is less than epsilon by 2 and U P F2G minus L P F2G is less than epsilon by 2. ये है नंबर 3. उसके बाद फिर है U P F1G plus U P F2G प्लस नहीं है सॉरी माइनस ब्रैकेट में L P F1G plus L P F2G is less than epsilon. नंबर 4.
इसके बाद फिर एक रिजल्ट ये भी लिखे थे हम, स्मॉल एम डेज आर लेस देन और इक्वल टू f1 प्लस f2 ऑफ x लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम डेज आर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आई आर, नंबर 5। उसके बाद फिर बहुत देर बाद फिर छठा रिजल्ट हम लोग लिखे, L P F1G प्लस L P F2G लेस देन और इक्वल टू L P F1 प्लस F2G एंड U P F1 प्लस F2G लेस देन और इक्वल टू U P F1G प्लस U P F2G, नंबर 6। इतने रिजल्ट हम लिख चुके हैं अब तक। इसको ऐसे लिखा रहने दो भैया, इसको उतारिएगा मत है ना, ले इसलिए इसको हम कट लगा दे रहे हैं। अब आइए सेकंड पार्ट में, बहुत इत्मीनान से काम किया जाए, कोई हड़बड़ी नहीं। सिंस द अपर RS इंटीग्रल, since the upper RS integral is the infimum of upper sums, is the infimum of set of all upper sums, उतना लंबा ना लिख करके लिख दे रहे, infimum of upper sums, भावार्थ वही समझिएगा। Therefore for every epsilon greater than 0 there exists P1 comma P2 belonging to PAB such that U P1 F1G is less than upper integral A to B F1 DG plus epsilon by 2 equals to integral A to B F1 DG plus epsilon by 2, since F1 belongs to RSG। F1 RS इंटीग्रेबल है, इसलिए ये अपर इंटीग्रल इंटीग्रल के बराबर होगा। इसी प्रकार से एंड अपर सम U P2 F2G is less than upper integral A to B F2 DG plus epsilon by 2 is equal to upper integral A to B F2 DG plus epsilon by 2, since F2 belongs to RSG। क्लियर? लेकिन आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, आपको ये स्टेप नहीं क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट ही तो भाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब जब इसका उपयोग होता है तो स्टूडेंट को दिक्कत होती है। ये क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम, ज्योमेट्रिकली इसको आपको हम समझाए थे। इसको किसी एक के लिए हम व्यवस्था बना लिख दे रहे हैं, बकिया देखो ये भी अपर सम है, ये भी अपर सम है, जो कहानी इसकी है वही कहानी इसकी है। ये F1 फंक्शन के लिए P1 पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, ये F2 फंक्शन के लिए है। देखो अपर इंटीग्रल इनफिमम होता है, अपर इंटीग्रल इनफिमम होता है। तो इनफिमम कहाँ पर आ जाएगा? एकदम इधर बाएं। ये है अपर इंटीग्रल A टू B एफ डी जी। हम ना F1 ले रहे हैं ना F2 ले रहे हैं, F ले रहे हैं, एफ डी जी। अब इसके इधर तो आप जाएंगे ना इनफिमम के, इसके इधर जाएंगे तो इसके इधर अगर आप आ गए तो एक एलिमेंट बनेगा आपका अपर इंटीग्रल A टू B एफ डी जी प्लस एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन ना लेके एप्सिलॉन बाई 2 ले लिए।
अगर ये इन्फीमम है तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है बेटा, ये इतनी दूर गैप नहीं है, इतना बड़ा गैप नहीं है। एप्सिलॉन बाई 2 बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये इसके बिल्कुल बिल्कुल बगल में बहुत जरा सा गैप है, बहुत जरा सा, बहुत जरा सा, बहुत जरा सा। लेकिन क्लैरिटी के लिए हमने दूर दिखा रखा है, क्लियर भी तो समझना है। तो इस गैप में एक एलिमेंट सेट का जरूर आ जाना चाहिए। अगर इस गैप में कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर ये दावा ठोक देगा ये एलिमेंट कि हम इन्फीमम हैं। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट हमारे इधर हैं, हमारे इधर कोई नहीं है। सारे एलिमेंट हमसे बड़े हैं, इसलिए हम लोअर बाउंड हैं, ये पहले से ही लोअर बाउंड हैं। इन लोअर बाउंडों में बड़ा कौन है? ये। तो ये कहेगा हम इन्फीमम हैं। तो ये इन्फीमम ना होने पाए, इसके लिए इस गैप में सेट का एक एलिमेंट आवश्यक रूप से होना चाहिए। अब ये अपर इंटीग्रल है, ये अपर इंटीग्रल है। अपर इंटीग्रल, अपर सम, अपर RS इंटीग्रल इज द इन्फीमम ऑफ अपर सम्स, इन्फीमम ऑफ अपर सम्स, इन्फीमम ऑफ अपर सम्स। यानी सेट में एलिमेंट्स कौन है? अपर सम्स। तो एक एलिमेंट यहाँ जरूर होना चाहिए, तो वो एलिमेंट हम लिख रहे हैं अपर सम U P1 FG। देखो जो भी सम बनेगा किसी पार्टीशन के रेस्पेक्ट में बनेगा ना, तो सेट ऑफ ऑल अपर सम्स में कोई एलिमेंट चाहिए, तो वो एलिमेंट किसी पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग ही बना होगा। तो मान लिया हमने P1 के करस्पॉन्डिंग बना है, ठीक, यही है माजरा। चाहो तो इसको क्लियर कट लिख ही दो, इसको F1 कर दो, यहाँ भी F1 कर दो, तो ये वाली स्थिति आ जाएगी, ये वाली कि ये जो है ये इसके बाईं तरफ है, माने दिस इज लेस देन दिस। यही तो लिखा बेटा, देखो U P1 F1G, यहाँ F1 कर दो भैया, U P1 F1G इज लेस देन अपर इंटीग्रल F1DG प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ऐसे ही तर्क दूसरे वाले के लिए आप दे सकते हो। आप समझ में आया? एक क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फीमम है, ऐसे क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुपरमम भी होता है। इसको मैं ज्योमेट्रिकली आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। ऐसे ये याद नहीं रहता है, लेकिन ऐसे ज्योमेट्री की मदद से आप याद करिएगा तो आपको याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और उधर हमको मिटाना नहीं है तो इधर ही मिटा के लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, फिर हम इसको मिटा देते हैं। Since थोड़ा सा हम और कुछ लिख करके तब लिखना चाह रहे हैं। We know that if P dash is any refinement, P dash is any refinement of P, then हम चूंकि अपर सम की बात कर रहे हैं इसलिए अपर सम वाला रिजल्ट लिख रहे हैं। U P dash FG लेस देन और इक्वल टू U P FG। ये since P equal to P1 union P2 is common refinement, of P1 and P2, therefore यही रिजल्ट लिखिए, एक बार P1 के लिए एक बार P2 के लिए। U P डैश की जगह क्या लिखें? P, और फंक्शन लिया F1 G लेस देन और इक्वल टू U P1 F1 G। इसी प्रकार से
आप लिख सकते हो यू पी F2 G लेस देन और इक्वल टू यू P2 F2 G। अब इन दो रिजल्ट्स को कनेक्ट करिए। देखो UP F1G इज लेस देन और इक्वल टू UP1F1G और UP1F1G इज लेस देन दिस वन, तो implies that UPF1G लेस देन और इक्वल टू UP1F1G which is less than integral a to b F1 dg plus epsilon by 2। and UPF2G less than or equal to UP2F2G, ये which is less than integral a to b F2 dg plus epsilon by 2। ऐसा UPF1G और इसे आप नंबर 7, इसे नंबर 8 डाल दीजिए। नाउ इंटीग्रल a to b F1 plus F2 dg is equal to upper integral a to b F1 plus F2 dg। कारण लिख दीजिए, सिंस F1 plus F2 belongs to RSG over closed interval AB, ये हमने प्रूव किया। F1 F2 दोनों RS इंटीग्रेबल विथ रिस्पेक्ट टू G हैं, हमने सिद्ध कर दिया था अभी फर्स्ट पार्ट में F1 plus F2 भी RS इंटीग्रेबल है। देखो जो अपर इंटीग्रल होता है वो अपर सम्स का इन्फीमम होता है, लोअर बाउंड होता है, तो छोटा होगा, लेस देन और इक्वल टू अपर सम यू पी F1 प्लस F2 G। यहाँ पे लॉजिक लिखना बहुत जरूरी है, सिंस अपर इंटीग्रल इज infimum of upper sums less than or equal to UP F1 plus F2 G। खोजो ये UP F1 plus F2 G less than or equal to UP F1 G plus U by 6। ये लिखिए, UP F1G प्लस UP F2G, ये आप जरूर लिखिए बाई 6। अब 7 और 8 देखें, 7 और 8 दिख रहा आपको, UPF1G UPF1G UPF2G। अब यहीं अगर हो जाता है एक लाइन और तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जाने दो, पेज भर गया है तो लेफ्ट हैंड साइड भी जरूर उतारिएगा। ये डिसिप्लिन में आपको अक्सर सिखाता हूँ, कॉपी में आप लिख रहे हो, पेज जब भर जाता है तो दूसरे पेज पर लेफ्ट हैंड साइड भी उतारना चाहिए। बच्चे ये गलती करते हैं एग्जाम में, वो नहीं उतारते, बस बराबर या लेस देन कुछ भी लिख देते हैं। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल a to b F1 plus F2 dg less than or equal to U P
F1G प्लस U P F2G, अब इसका इस्तेमाल करें 7 और 8 का, लेस देन इंटीग्रल A टू B F1DG प्लस इंटीग्रल A टू B F2DG और प्लस एप्सिलॉन बाई 7 and 8. Since epsilon is arbitrary, therefore जब एप्सिलॉन 0 होगा तो ये इक्वलिटी आ जाएगी, और इसमें एप्सिलॉन जोड़ने पर ये इससे छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये या तो इससे बराबर होगा या तो छोटा होगा. इंटीग्रल A टू B F1 प्लस F2 DG लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल A टू B F1 DG प्लस इंटीग्रल A टू B F2 DG. भाई ये क्या लिखा है कि ये इसके बराबर है अथवा इससे कम है, लेकिन वही एप्सिलॉन जब जोड़ देंगे तो बराबरी की बात ही खत्म हो जाएगी, तो केवल लेस देन आ जाएगा. ऐसे समझिए इसको. ये नंबरिंग क्या होगा, 7 और 8 हो चुका है ना, नंबर 9. सिंस या आप ये लिखें, वी नो दैट, काफ़ी बड़ा प्रूफ है इसीलिए कुछ शुरू में पहले लिख दिया था, तब भी बहुत लंबा हो जाएगा. वी नो दैट इफ F बिलोंग्स टू RSG ओवर क्लोज्ड इंटरवल AB and C is any constant, पिछले वीडियो में पढ़े थे आप, then CF belongs to RSG over closed interval AB. C चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो C की जगह -1 ले लें, ठीक ना. सिंस F1 प्लस F2 कामा F1 कामा F2 belong to RSG over closed interval AB implies that C से गुणा कर दिया और C -1 ले रहे हैं, -F1 -F2 कामा -F1 कामा -F2 also belong to RSG over closed interval AB. Thus by virtue of 9, result 9, integral A to B minus F1 minus F2 dg less than or equal to integral A to B minus F1 dg प्लस इंटीग्रल A टू B माइनस F2 dg. अब बेटा माइनस से पूरा गुणा कर देंगे जब, तो इनइक्वलिटी का नेचर बदल जाएगा. ये नंबर 9 भी हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं, नंबर 9 भी यहाँ लिख ले रहे हैं. नंबर 9 की हमको ज़रूरत पड़ेगी भी. नंबर 9 है इंटीग्रल A टू B F1 प्लस F2 dg लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल A टू B F1 dg प्लस इंटीग्रल A टू B F2 dg. ठीक, अब इसको मिटा दे रहा है, बस हो गया 3-4 मिनट और. पहले ही हमने कह दिया था प्रूफ काफ़ी लंबा है. माइनस से ऑपरेट कर दिया हमने, तो ये हो गया इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल A टू B F1 प्लस F2 dg ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रल A टू B F1 dg
प्लस इंटीग्रल ए टू बी F2 डी, दैट इज साइड बदल के लिखना है इसको, इंटीग्रल ए टू बी F1 डी प्लस इंटीग्रल ए टू बी F2 डी लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी F1 प्लस F2 डी. Number 10. From 9 and 10 we have the result. From 9 and 10. Integral a to b F1 dg plus integral a to b F2 dg less than or equal to integral a to b F1 plus F2 dg. और फिर 9 है, 9 कहाँ ये, दिस इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी F1 डी प्लस इंटीग्रल ए टू बी F2 डी. अब ये देखो सैंडविच बन रहा है ना, तो सैंडविच प्रिंसिपल होता है, सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं इसको. ये क्वांटिटी इससे बड़ा भी हो, इससे छोटा भी हो, ऐसा संभव कहाँ है? तो ये चीज़ संभव तभी है जब इक्वलिटी रहेगा. This implies that integral a to b F1 plus F2 dg equals to integral a to b F1 dg plus integral a to b F2 dg. ये रहा कंप्लीट प्रूफ. वीडियो लाइक ज़रूर करिए. थैंक यू वेरी मच. बातचीत जारी रहेगी. अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है.